Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Students, we are doing chapter 16, our constitution. And in this chapter, we have discussed some basic features of our constitution. Which basic features? Like unique constitution, it means our constitution adopted all the good qualities, good points of other constitution. So in this way it is unique. It is the lengthiest constitution. It has 22 parts, 395 articles and 12 schedules. Right? It is a written constitution and rigid and flexible. Rigid and flexible means it can be amended easily or it cannot be amended easily. Okay, both the things are there. Now, in this video, we are going to discuss a line, that is, India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Our constitution declares India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. So what is the meaning of these words? Sovereign, socialist. Why our constitution makers call our country like this? So to know all these things, we have to know the meaning of the particular word. Sovereign state. Sovereign means the state which is free from all the external controls. Okay. The state or the country that is capable enough to take their own decision. The state or the country that is not under others' influence. That state is sovereign state. वो स्टेट जो दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस में नहीं है, जो दूसरी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, जो अपने डिसीजन खुद लेती है, दैट इज अ सोवेरियन स्टेट. ओके. बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल्ड ओवर अस. Near about 200 years they ruled. It means our government was taking decision according to them. Whether in that government there were some Indian people also, but still they were influenced by Britishers. Our leaders had to follow British rule because we were under British control. So our constitution frameworkers formed the constitution and describe India as a sovereign state in our constitution. 15th August 1947 we got independence. और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी स्टेट क्या बनी? सोवेरियन स्टेट. इंडिया became a sovereign state. It means our country is free from all external controls. हमारी कंट्री बाहर के सभी कंट्रोल से फ्री है. किसी दूसरी कंट्री का, किसी पावरफुल पर्सन का हम पर कंट्रोल नहीं है. Internally, we are free to take our own decision. हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. किसी दूसरे से कुछ पूछना या किसी दूसरे की कोई रिकमेंडेशंस हमें ज़रूरत नहीं है. We are capable enough to take our own decisions.
No other country can dictate its policy or terms to us and nobody can interfere in our internal affairs. कोई दूसरी कंट्री अपनी पॉलिसीज़ को हम पर लागू नहीं कर सकती, डिक्टेट नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती कि हम उन पॉलिसीज़ को फॉलो करें. ओके, नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज़. कोई भी दूसरी कंट्री अपनी पॉलिसीज़ को हम पर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, डिक्टेट नहीं कर सकती. एंड नोबडी कैन इंटरफेयर इन आर इंटरनल अफेयर्स. हमारी कंट्री के जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी रियॉट्स हैं, फाइट्स हैं, वो सब हम खुद से सॉल्व करेंगे. नोबडी कैन इंटरफेयर इन दैट. जस्ट लाइक आर हाउस मीटिंग्स, जब हम अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो नो आउटसाइडर इज़ अलाउड इन दैट मीटिंग. ठीक है, वहाँ पे हम कह देते हैं कि ये बाहर का है, ये नहीं आना चाहिए, हम अपना जो प्रॉब्लम है वो खुद समझा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को. तो सेम विद द कंट्री, कि हमारी कंट्री हमारा घर है तो हम अपने घर की बात किसी दूसरे को डिस्कस नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स एंड वी कैन सॉल्व आवरसेल्फ आवर प्रॉब्लम्स, आवर कन्फ्लिक्ट्स, वट एवर इज़ देयर. ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पर है, जो भी हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, वी कैन सॉल्व दोज ourselves. Okay, so is it clear? Sovereign state means the state that is free from all external controls. वो कंट्री, वो स्टेट, वो एरिया जो बाहर के किसी भी कंट्रोल से फ्री है, that is known as sovereign state. Now move to the next. Our constitution declare India as a socialist state. Now socialist state means where there is no economical exploitation, where there we get all the equal opportunities, financial equality must be there. Okay, that is a socialist state. जहाँ सबको फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जहाँ सबको फाइनेंशियल इक्वलिटी मिली हो, वो स्टेट, वो कंट्री सोशलिस्ट कंट्री है. बिकॉज सोशलिज्म इज़ वन ऑफ द नेशनल गोल्स टू बी अचीव्ड. हमारा एक नेशनल गोल जो हमें अचीव करना है वो क्या है? सोशलिज्म. सो इंडिया इज़ against exploitation in all forms and will try to establish economic justice without being attached to any particular ideology. In our country we have freedom to grow. We have equal opportunity to grow our status, to uplift ourselves. खुद को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी कंडीशंस को बेटर करने के लिए हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आवर कंट्री इज़ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है किसी भी तरह से. एंड आवर कंट्री ट्राई टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिकली मीन्स फाइनेंशियली टाइप जस्टिस, कि सबको इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा. ऐसा नहीं है कि किसी को ग्रो करने के चांसेस ही ना मिले. एवरीबडी विल गेट द चांस, will get the opportunity to improve themselves, to grow themselves, to uplift themselves. And our country is not attached with any ideology. किसी भी आइडियोलॉजी के साथ, किसी भी थिंकिंग के साथ, सोच के साथ हमारी कंट्री अटैच नहीं है. फ्री है हर चीज़ से हमारी कंट्री, और
अपने डिसीज़न खुद ले रही है, इसलिए वो इकोनॉमिक जस्टिस को भी वेरीफाई कर रही है, इकोनॉमिक जस्टिस को भी फॉलो कर रही है। अब एक पर्सन पुअर हो सकता है, बट इफ ही हैज़ एन एबिलिटी टू ग्रो ही कैन ग्रो। अगर वो कोशिश करे, उसमें एबिलिटी है, वो अपना माइंड यूज़ करे, तो वो अमीर हो सकता है, वो रिच हो सकता है, वो अपना जो स्टेटस है वो अपग्रेड कर सकता है। यहाँ सबको इस चीज़ का फ्रीडम है। सो इन दिस वे आवर कंट्री इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट एंड सोशलिज्म इज़ द national goal to be achieved. Okay, next is secular. Secularism means we have freedom of religion. In our country there are so many religion. Here are some religious symbols, if you can रिकॉग्नाइज दीज। तो यहाँ पर आपको सिंबल्स शो हो रहे हैं एंड दीज आर द रिलीजियस सिंबल्स एंड वी कैन से देयर आर सो मैनी रिलीजन्स इन आवर कंट्री एंड ईच एंड एवरी रिलीजन गेट रिस्पेक्ट इन आवर कंट्री। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन and we have freedom to follow any religion. Nobody can force us to adopt any religion of their wish. Our constitution gives us the right to freedom of religion. Right to freedom of religion is a fundamental right. Okay? सेकुलर स्टेट का मतलब है कि हमारी स्टेट में सभी रिलीजन्स इक्वल हैं, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है और हम फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है हमें एंड इट इज़ आवर फंडामेंटल right. Now is it clear what is secular state? Secular state means the state where all the religion get equal status and there is no religion of the state. country का या state का अपना कोई religion नहीं है। India is not a Hindu country, it is a secular country or secular state. धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर किसी भी रिलीजन को कोई बहुत इम्पॉर्टेंट या पर्टिकुलर प्लेस नहीं दिया गया। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट मीन्स डेमोक्रेसी इज देयर, वी कैन elect our representatives and our representatives work for us on our place. हमारी जगह पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। आवर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। The administration of the country is carried out by the elected representative of the people. हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ही कैरी कर रहे हैं। हमारा जो शासन है, हमारा रूल है, वो कौन चला रहा है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। द गवर्नमेंट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। हमारी गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर ही वर्क करती है, वो रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रूल नहीं बना सकती। द रूल्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज द गवर्नमेंट इज रनिंग बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द
Indian citizens. Okay? Now move to the next. Republic. Republic means the head of the state is an elected head. Okay? It is not hereditary. Hereditary का मतलब हमने 6th-7th में भी रीड किया था. It means किंग का बेटा उसके आगे बेटा, यानी कि उसका वंशज, उसका जो फैमिली, एक ही फैमिली वर्क करती आ रही है, दैट इज़ हेरिडिटरी. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो हमारा हेड है, दैट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन अमंगस्ट द पीपल. लोगों में से ही किसी एक डिज़र्विंग पर्सन को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट कॉल किया जाता है, हेड बनाया जाता है. But on the other hand, in spite of being a democracy, England is not a republic. अब इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज़ हेरिडिटरी, दैट इज़ किंग एंड क्वीन. वहाँ का जो हेड है वो हेरिडिटरी है, वो किंग है और क्वीन है. क्वीन एलिजाबेथ इज़ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. वो वहाँ की हेड हैं और वो क्वीन है, इसलिए इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री है बट इट इज़ नॉट अ रिपब्लिक. ओके. तो रिपब्लिक मीन्स द कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो आवर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड हेड फ्रॉम अमंगस्ट द पीपल. हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हेड हैं और वो लोगों ने ही चुने हैं अपने में से कोई. आई होप द मीनिंग ऑफ दिस लाइन दैट इंडिया इज सोवेरियन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाउ क्लियर टू यू ऑल. अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी ऐसा डाउट है कि इट इज़ नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क, यू कैन राइट द मैसेज, यू कैन कमेंट ओवर देयर, यू कैन आस्क एनी टाइम. So that's it for this video. Thank you and have a nice day.